Okay, I welcome you all once again to our second session for today. It is on audit checklist and documentation using cloud tools. So as we all know that I think documentation is one of the most important part of audit. That is what which will help us to prove that we've actually done the audit. So how can we use the different technological tools for documentation? Jigar Shah, CA Jigar Shah, is here to guide us on that. To introduce our today's faculty, I would like to invite Rishabh Chaudhary. Good evening, everybody. I would like to introduce the second speaker of the day, C.S. Jigar Shah. He's partner at SK Rathi and Company. He's written two books, GST for Entrepreneurs and also co-author of Work from Home for Professional Firms. He's implementation partner of Zoho Finance Products and has helped 150 plus businesses to come on board to Zoho platform. He loves to explore new tech products which are designed towards bringing efficiency and effectiveness at the workplace. He's a part of technology committee of Chamber of Tax Consultants and Bombay Chartered Accountant Society. And he's also a regular speaker on topics related to new tech developments in fintech space. Before we start the session, I would request CA Praveen ji to present him with the memento to the speaker. First of all, good evening, everyone. I am well aware that it is peak audit season and we all are very busy, working all Sundays, right? So, no commitment from my end that I really respect your time and I'll try to provide as much value as possible today from what I know and what I have learned over the years. Before I start, the presentation is not about audit documentation. कि भाई हमको documentation में क्या क्या लेना चाहिए. I guess there are much senior participants out there who can guide us on that. But the presentation is about what are the tools that we can use to record those documentation, right? So what is to be collected is definitely you might be having a system in your firm or we might be following accounting auditing standards, etc., right? But what we are going to see over here is that how do we record that documentation, correct? So there was a time wherein all documentation was supposed to be in physical files with, even during my articleship, which was not that long back, but I used to have huge physical files and flaps dalke, we used to keep our audit documentation and all. But now all that has gone. So before I start, some disclaimer, I'll be sharing about some tools and which have a free version and paid version. So observe your own due diligence before making any kind of purchase. I'm not associated with any tools, but I will be talking about Zoho projects. So I'm not associated with Zoho projects, but I am a Zoho finance implementation partner. And views expressed are personal and does not represent views of my firm or JB Nagar Study Circle. Now, first of all, let us explore why online tools, right? So most of the source documents nowadays are generated are digital,
earlier, few years back, like 5 years back or 7 years back, still to go digital, we used to have physical bills and then we used to scan. I remember during my articleship time, we had a scanner right at the entrance. So that then we had a system कि नहीं जो भी document आएगा पहले हम उसको scan करेंगे फिर save करेंगे. Because जो source document था वो अभी भी physical था. Even today, I would say there are few clients जो आपसे physical bill मंगाएंगे, invoice मंगाएंगे, but हमारी firm के बारे में बात करूँ तो 98% जो clients हैं they are okay कि चलो हमने email कर दिया है तो it is fine. So आपने भी देखा रहेगा कि अभी जो भी source document है itself वो डिजिटल है. आपके जो अग्रीमेंट्स, इनफैक्ट अग्रीमेंट्स भी डायरेक्ट पीडीएफ में बनते हैं. कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी डायरेक्टली ऑनलाइन होता है, ई साइनिंग वगैरह होती है. इनफैक्ट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बैलेंस शीट भी हम डीएससी से साइन करते हैं, विच आई पर्सनली डोंट लाइक. क्योंकि वो भी अभी हम क्या आर्टिकल को दे देते हैं कि भाई हमारा डीएससी ले लगा दे, बट दैट इज द प्रिविलेज दैट वी शुड हैव ऑफ फिजिकली साइनिंग. बट कहने का मतलब यह है कि सोर्स डॉक्यूमेंट इटसेल्फ अभी डिजिटल हो गया है. तो पहले जैसा टीडीएस वर्क नहीं है अभी कि हमको कुछ फिजिकल को ऑनलाइन में ट्रांसफर करना है. हमारे जो क्लाइंट्स हैं दे आर वर्किंग फ्रॉम डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस, especially after GST, right? We all have expanded ourselves in a way that we can cater to clients which are out of Maharashtra and we can help them with all kinds of compliances. So clients are at different geographical locations. A lot of finalization audit happens without visiting at client's place, right? So definitely the data transfer, etc., everything is digital. So your clients are also at different geographical locations. Your team members are also at different geographical locations. Not necessarily now everyone is working from the same office, right? People might be working remotely or to a different place, etc. And in a city like Mumbai, it is very expensive to maintain physical files, right? The per square feet rate is around 30,000, 35,000. वो एक file का boxes रखना is very expensive. And even submissions are happening online. So ऐसा भी नहीं है कि एक टाइम था कि हम बैलेंस शीट निकाल के रखते थे कि भाई कहीं पे सबमिट करना है तो जेरोक्स निकाल के देंगे. So अभी now scan copies are good enough because your submission when it comes to income tax assessment, etc., everything is happening online. So there is no real need of having physical documentation. Having said that, what we need to see is that is our existing system efficient? In whatever manner you might be managing your data, is that efficient? Especially when it comes to audit documentation, we collect everything, we check everything, but the way we manage those documentation after audit is difficult because हमारे जो फाइनल बैलेंस शीट है उसके 5 वर्जन होते हैं. फाइनल 1.1, 1.2, 1.3 और नेक्स्ट ईयर ढूंढना एक्सेल वाली बैलेंस शीट ढूंढना कि भाई प्रीवियस कौन सी फाइनल हुई, दैट इज अ बिग थिंग, स्ट्रेसफुल वर्क कि भाई कौन से. और जो लोग पाप करते हैं बेसिकली जो इंटर्न्स ने किया हो तो निकल गए रहते हैं. तो then we have to blame the ones who are there with us, right? So these are the challenges because we are somewhere, we might not be following a proper system or standard system to maintain documents. And so these are few of the challenges that I am facing, that even now, team members, आप उनको लेजीनेस बोलिए या हमारे तरफ से स्ट्रिक्टनेस कम है बोलिए, बट लोकल पीसी पे डॉक्यूमेंट सेव करके रखते हैं कि भाई उनको मांगो तो बोले कि सर मेरे ये पीसी में ये फोल्डर में सेव है, वो फोल्डर में सेव है. हम कितना भी बोलो कि भाई यहाँ पे उसको सेव करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको रियल टाइम डेटा नहीं मिलता है बिकॉज उनके वर्किंग फाइल्स वगैरह लोकल पीसीज पे होती है. So until and unless we have one and a standard system to maintain final documents, it's next to impossible to maintain audit papers in an appropriate manner. So one thing that we need to decide is that, okay, we will have one process and process irrespective of size of the client. कि समझो कोई अगर छोटा बैलेंस शीट है जिसमें ट्रांजैक्शन नहीं है उसके लिए कैसे भी रखा तो चलेगा, लेकिन बड़े क्लाइंट के लिए हम प्रॉपर रखेंगे, दैट डज नॉट वर्क बिकॉज उसमें टीम भी कंफ्यूज हो जाती है. Correct. So one thing that we need to decide is that we need to have one system
Now, whatever that system, maybe we'll discuss what can be the different types of systems, but we'll have one system and a standard system for maintaining all kinds of audit documentation. But by the way, if you have any questions, just feel free. And more than questions, we can have interactive session in terms of how we are doing at our office, and we can learn from each other. So this is the flow of the session. First, we will see how we can manage these documents through Google Drive or OneDrive. Then we will see how we can manage documents through Airtable, which is a tool, data management tool. Then we will see how we can manage through Zoho Projects. Zoho Projects is a project management tool. And how we can manage documents through My Audit. So My Audit is a dedicated audit software. Okay. The first three ones are not dedicated audit software. उसको हम जुगाड़ करके हमारे हिसाब से यूज कर रहे हैं. हमने उसको ऑडिट एक टूल बनाया है हर एक के अंदर. Let us go to Google Drive. I guess now most of people might be using either Google Drive or OneDrive, right? How many people are using Google Drive actively? 4 5 people. How many people are using OneDrive? Once again, 4 5 people. So one question to all of you. अभी भी आपका जो documents है, कितने लोगों का documents local server पे होता है? In the sense कि भाई office के ही PC पे है documentation. Okay. टू ऑफिस के पीसी में, ठीक है. और तो फिर हम गूगल ड्राइव या वन ड्राइव पे सब अच्छा, तो हमारा अभी भी ऑफिस पीसी पे है, तो हम लोग गूगल ड्राइव या वन ड्राइव पे सारे डॉक्यूमेंट सेव नहीं कर रहे हैं, राइट. तो अगर आज के दिन मेरे को कोई क्लाइंट का फोल्डर देना है तो वो ऑफिस के लैन में है, तो मैं शायद से घर से उसको एक्सेस नहीं कर सकता, करेक्ट. ऑफिस में आके ही करना पड़ता है. नाउ व्हाट वी हैव इन आवर ऑफिसेस that in fact up to last financial year we were maintaining everything in OneDrive. From current financial year we have moved to Google Drive, but all the documents हम लोग ने एक standard folder का template बना दिया कि भाई ये 5 तरीके के सारे के सारे जो documents है वो यहाँ पे ही सेव होंगे. और जब भी हम clients के साथ भी share करते हैं तो हमारा strict instruction है to team members कि आप client को कोई भी document share नहीं करोगे, आप लिंक शेयर करोगे. तो वो जो लिंक है वही जाती है, ईमेल में भी वही जाती है, बी इट टीडीएस वर्किंग, जीएसटी वर्किंग एक्सेट्रा. इंटरनली भी जो डेटा शेयरिंग होता है, वी यूज समथिंग नोन एज Zoho Click फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन, व्हिच इज लाइक व्हाट्सएप ओनली, बट ओनली फॉर योर ऑफिस. तो वहां पे भी लिंक्स शेयर होती है, सो दैट वी कैन ऑल्सो वर्क, अपडेट एंड वी कैन क्लोज. तो आई विल हाईली रिकमेंड दैट इफ यू आर still using your maintaining files on a local PC, you move to cloud. Initially you will feel resistance in terms of flexibility of using, but it is not that expensive, first of all, and second, you get great accessibility and co-working environment. कि भाई एक साथ 2-3 लोग काम कर रहे हैं, उसको कॉल पे लेके बोल दिया कि भाई इधर जाके ये देखो वो देखो. क्लाइंट को भी लिंक शेयर किया तो क्लाइंट कैन गिव हिज और हर कमेंट्स and then we can reply. We'll see all those things. Okay, OneDrive, I have a question. I'm giving it a try in my office. So what I did was I created a folder shortcut on my server. और फिर वो उसमें when I work वो धीरे-धीरे अपलोड होता रहता है. हाँ, सिंक होने में टाइम sync लगता है, correct. So उसका क्या alternative मतलब I should directly work on the cloud वैसा? हाँ, you can work directly on the cloud. So put that on Chrome or something and then work on those. Correct. Yes. तो जैसे ये Google Drive है, this is directly on cloud, right? वैसे OneDrive है, that is directly on cloud. I can directly work on Excel and everything on. Yes. On the cloud. On the cloud, yeah. Because having it on my PC उसका वो थोड़ा syncing में time ज़्यादा है, तो it kills the purpose. Correct, correct. तो you can work directly on cloud. But मैं आपको बता देता हूँ, cloud पे आप जब भी पहली बार थोड़ा टाइम काम करोगे ना, आपको मजा नहीं आएगा. हाँ, because वो जो डेस्कटॉप पे जो Excel है और क्लाउड पे although functionality सेम है, but just the way it looks, वो हाँ, that is because that is something that we are not used to. और हमको लगता है, और especially वर्ड का जो अलाइनमेंट है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट आपने चढ़ाया, अपलोड किया,
तो आपको बराबर अलाइन नहीं दिखेगा, बट उसी चीज को आप जब भी डाउनलोड करके करोगे तो प्रॉपर प्रिंट में आएगा। Right. तो लाइक लेट अस से समथिंग लाइक आपको प्रिंट प्रीव्यू बनाना है फॉर बैलेंस शीट, देन यू विल ऑलवेज प्रीफर कि आप डाउनलोड करो, उसके ऊपर काम करो और फिर करो। तो हमारे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट ऐसा हो गया है कि जो भी फाइनल डॉक्यूमेंट होता है ना, वो ड्राइव पे चढ़ता है, बिकॉज शेयरिंग थ्रू लिंक होती है। तो क्लाइंट के साथ भी जब भी कोई फोल्डर शेयर करना होता है, उनका कंप्यूटेशन वगैरह पूरा, तो पूरा जो फोल्डर का लिंक ही शेयर होता है, जिप फोल्डर नहीं शेयर होता है। सो दैट इट वी इंश्योर दैट अच्छा ये लिंक शेयर हुई है, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड हो गए हैं। So, साथ-साथ they can also see यस whatever changes we are doing. करेक्ट, व्हाट एवर चेंजेस यू आर मेकिंग। कई बार जगह वो लिंक पे टाइम भी रहता है कि 48 घंटे तक वो फिर हाँ, फिर वो गायब हो जाता फिर है, तब ये यस dump नहीं होती है। करेक्ट। So that you can link के ऊपर you can keep restrictions, all kind of restrictions that you want. So for example, let us say so Google Drive और OneDrive similar तरीके से चलता है, ठीक है, सिर्फ प्राइसिंग में फर्क है। तो we'll just go through Google Drive and similarly you can use OneDrive, ठीक है। So what I have done is मैंने आपका जैसे एक्सेल शीट में चेकलिस्ट होता है, वो सेम चीज है, यहाँ पे चेकलिस्ट बनी हुई है। वंस अगेन वी विल नॉट गो इनटू के भाई वो चेकलिस्ट बराबर है कि नहीं, ठीक है, बट विल सी व्हाट आर द फंक्शनलिटीज दैट वी कैन यूज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी मैंने कॉलम्स बना दिए हैं। स्टेटस, यहाँ पे स्टेटस में मैं ड्रॉप डाउन दे सकता हूँ अभी, और अभी इसका ड्रॉप डाउन बनाना बहुत इजी हो गया है। पहले ड्रॉप डाउन के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था प्रोसेस, अभी बस ये बोलोगे ड्रॉप डाउन का ये दे दिया है, तो दिस रियली हेल्प्स। इसको आप कॉपी पेस्ट जो करना है कर सकते हो, सो दैट यू कैन ऑलवेज फिल्टर वाया स्टेटस थ्रू ड्रॉप डाउन फीचर। Then we had kept documentary evidence what is required, what is the form, is it a digital or remarks? Okay. So the first thing is that do we have a, if you see this example, do we have a permanent audit file? Now I can hyperlink this. तो ये इधर बाकी परमानेंट ऑडिट फाइल में क्या क्या होना चाहिए वो इधर है, दिख रहा है। सो आई कैन हाइपरलिंक एनीथिंग ओवर हियर। इफ यू सी ये मैंने एक फोल्डर का लिंक दे दिया इधर, बैंक रिकंसिलिएशन फोल्डर, तो यहाँ पे चला गया। Okay, so you can hyperlink anything. So basically what I have hyperlinked over here, if you just, whether taxpayer is registered under GST, if yes, go over here. तो परचेज वेरिफिकेशन की फाइल में चला गया कि आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। ओके, नाउ हाउ डू यू डू दिस? आप कोई भी कहीं पे भी जहां पे भी हाइपरलिंक देना है वहां पे क्लिक करिए, इंसर्ट करिए एंड इंसर्ट लिंक। ओके, तो यू कैन गिव लिंक टू एनी ऑफ द अदर डॉक्यूमेंट ऑल्सो जो गूगल ड्राइव पे है। ऑनलाइन भी कहीं कोई भी साइट का आप लिंक दे सकते हो, तो डायरेक्टली वो साइट पे चला जाएगा। और अगर सेम डॉक्यूमेंट के अंदर देना है तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है आपके शीट्स एंड नेम चेंजेस, एंड यहाँ पे यू कैन गिव इंटरलिंक्स, राइट। सो दिस इज अ बेसिक फॉर्म। सो व्हाट आई वुड एनविसाज इज दैट ये हर एक क्लाइंट का फोल्डर बनेगा गूगल ड्राइव पे, उसमें मास्टर ऑडिट प्रोग्राम जैसे एक ऑडिट चेकलिस्ट होगी, उसमें जो मेरी बेसिक चीजें हैं जो मैंने प्लान बनाया है वो सारी चीजें तो ये एक ही एक्सेल शीट में आ जाएगी, बैंक रिको वगैरह जो भी मैंने बनाया है वो। एंड इफ देयर आर एनी डॉक्यूमेंट्स देन वो डॉक्यूमेंट का भी जो लिंक है वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ओपनिंग बैलेंसेस है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट वगैरह सेव की है, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस सेव किया है, तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डमी मैंने डाला हुआ है। So if there is any folder that I want to share, for example, a testing folder, simply what the user has to do is share, copy link, and copy paste the link over here. ठीक है,
सो इससे क्या हो जाएगा कि आप भी अगर जब भी रिव्यू के लिए बैठोगे तो यू विल फाइंड अच्छा ओपनिंग बैलेंस इसकी सारी यहाँ पे है कि नहीं, एंड यू हैव ऑल द लिंक्स, यू कैन जस्ट क्लिक द लिंक्स एंड यू कैन सी द documentation whether it is complete or not complete. And similarly done by, done on, ये सारी चीजें अगर आपको बनानी है तो आप बना सकते हो. Now in fact यहाँ पे जैसे सर बता रहे थे that when you are sharing you can give certain rights कि भाई restricted ये जो person है वो viewer है, commenter है कि editor है, and you can also add expiry जो सर बता रहे थे कि भाई कब तक उसके पास ऑप्शन होना चाहिए. So one recommendation would be that once the audit is completed, everything should be locked. बाकी सबको किसी को भी edit का access मत दो, folder को भी lock कर दो. At folder level also, at folder level you can give different types of access. Okay. Viewer, commenter, editor. So at complete folder level, we can give access to the people. And वो फोल्डर में आप सारे जो भी एक्टिविटी होती है ना, दैट ऑल्सो उसका भी ट्रेस होता रहता है. यू कैन सी कि ये अक्षर राठी ने ये एक्शन लिया है, हमने ये ऐड किया है, आशुतोष शास्त्री ने ये किया है, शेयर टू आइटम्स. तो अगर कुछ भी डाउनलोड वगैरह हो रहा है जो आपको देखना है कि भाई किसने क्या चेंजेस किए हैं, उसका पूरा ट्रेल यहाँ पे रहता है. So similar thing is for OneDrive also. Definitely you can download the whole thing once you are done. If you want to have a backup in your hard drive, etc., you can simply download the whole audit folder for yourself. Any questions on Google Drive? Yeah. So this was a very basic thing. I guess many people might be using this. आपको ये शेयर करके दिखा देंगे नेक्स्ट, जब नेक्स्ट करेंगे आप Yeah. शेयर स्क्रीन करके दिखा दोगे गूगल ड्राइव नेक्स्ट टाइम, व्हाटएवर यू डू आफ्टर दिस, वो इस पे जूम पे आने लगा. यहाँ पे तो आ रहा है. हाँ वहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है. अच्छा ओके. यहाँ पे शेयर स्क्रीन करना है तो हाँ कर दीजिए. ओके ओके. Yeah. ना. ठीक है. So this was about Google Drive. I think if you are using locally, शायद से अगर आपके पास आप Excel में चेकलिस्ट मेंटेन कर रहे हो तो हाइपर लिंकिंग वगैरह की फैसिलिटी नहीं होती है. बट यही चीज अगर आप Google Drive पे यूज करोगे तो यू कैन हाइपर लिंक थिंग्स विच कैन मेक योर लाइफ इजी. एंड यू नो जैसे अगर पीयर रिव्यू के लिए भी देना है तो उसको सिर्फ ये शीट का एक्सेस दे देना है, एंड देन यू कैन सी के सब बराबर डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है कि नहीं है. नाउ लेट अस कम टू प्राइसिंग. ये हम लोग शायद से देख लिया सारे. सो गूगल ड्राइव में इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी बिजनेस अकाउंट, जैसे @ आपकी कंपनी का नाम वाला अगर अकाउंट नहीं है, देन यू कैन बाय एडिशनल स्टोरेज एट 1300 रुपीज पर ईयर, एंड इट विल गिव यू 100 GB ऑफ स्टोरेज विच इज गुड इनफ फॉर अस टू स्टार्ट ऑफ विथ. एंड अगर आप 2 TB का भी यूज करना चाहते हो विच इज लॉट ऑफ डेटा, then the cost is 6,500 per year. So once again, it is absolutely worth your money in terms of managing your data. But जैसे हम लोग ये लास्ट ईयर तक यूज करते थे, बट वी वर हैविंग द बिजनेस अकाउंट. तो बिजनेस अकाउंट वालों के साथ उन लोगों ने बहुत नाइंसाफी की, और नाउ वी कैन नॉट बाय एडिशनल स्टोरेज. वी हैव टू मैंडेटरीली अपग्रेड टू अ बिजनेस प्लान उनका जो है. तो फॉर अस इट बिकेम वेरी एक्सपेंसिव. It has become very expensive now, but we are managing it. So once again, अगर बिजनेस अकाउंट से आप अगर कर रहे हो ना, तो अगर और आपको अगर मेंटेन करना है तो आप बिजनेस अकाउंट से इसको मेंटेन नहीं करें. @gmail वाला जो फ्री अकाउंट आप यूज कर रहे हो उसमें एडिशनल स्टोरेज बाय कर लोगे आप, तो इट विल बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव फॉर यू. एंड वंस यू हैव बॉट द स्टोरेज यू कैन शेयर दैट फोल्डर विथ n number of emails, then there are no restrictions.
This is one time pricing. I think 6,200 per year वाला plan is the best plan. We are using that. हमने थोड़ा टाइम पहले लिया है तो थोड़ा हम लोग को और सस्ता पड़ रहा है. But you get 6 TB storage out here. यहाँ पे once again lot of storage and around 5 people or 6 people can use official Windows के जो ये है tools, Excel, Word, etc. So once again, absolutely worth the money. Now let us come to Airtable. Has anyone heard about Airtable earlier? So Airtable is data management के लिए ही है वो, data flow, data management के लिए. अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ ना, that is only 1% usage of what can happen in Airtable. और मेरे को उतना ही पता है. ठीक है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं. देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज. और जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं वो इसको बहुत यूज करती है बिकॉज जो भी फ्लो वगैरह मैनेजमेंट है वो करते हैं. लाइक जैसे हमारा गूगल फॉर्म है, राइट? तो एयरटेबल यूज करके फॉर्म भी क्रिएट हो सकता है और वहां से ऑटोमेटिक एक बार डेटा आ गया तो उसको एनालिसिस वगैरह भी कर सकते हैं. So I'm just saying this friend because just to inform you that the product is much more beyond than what we will use for our purpose. हमारा मेरे को लग रहा है कि बहुत ही बेसिक पर्पस है जो इसके साथ सॉल्व हो जाता है. हम लोगों ने काफी सारे टूल्स ट्राई किए. जैसे मैंने जो आपको back we were using that for managing our audits, and Airtable is something we are using currently for managing our audits. So as mentioned, Airtable is for your managing your database. Now I'll show you what we have done. तो जब भी आप Airtable का अकाउंट खोलोगे सबसे पहले तो आपको एक टेम्पलेट मिलेगा, बेसिक टेम्पलेट विच विल बी देयर, जिसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं होगी. बट मैंने भी बेसिक टेम्पलेट यूज किया and these are the fields that I have created. So name, इसके अंदर क्या टास्क है, जैसे ओपनिंग बैलेंस है तो उसके अंदर क्या टास्क है, इसको हम एक्सपांड करके भी देख सकते हैं कि भाई चेक वेदर लास्ट ईयर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज क्लोज्ड और नॉट, obtain opening trial balance after rectification, obtain audited FS along with audit report of last year. ये मैंने 3 हमने टास्क बना के रख दिए for opening balance verification. Now यहाँ पे you can add notes कि भाई कुछ भी क्वेरी है उसको कि भाई TDS compliance में कुछ डालना है उसको कि Q4 TDS return to be revised. तो सिंपल नोट यहाँ पे बना सकते हैं कोई भी व्यक्ति. तो दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग. नोट सेक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर कम्युनिकेशन. और अगर करना है तो टास्क भी क्रिएट कर सकते हैं. तो जो दूसरा टास्क है, नया रिकॉर्ड है, वो भी क्रिएट कर सकते हैं. बट सिंप्लिसिटी जो हम लोग को अडेप्ट की है कि भाई सिंपली नोट्स में डिस्कशन करो. एंड ओवर हियर देयर इज डॉक्यूमेंट. यहाँ पे आप जितने भी सपोर्टिंग है आपके, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो डायरेक्टली. यहाँ पे ऑडिट स्टेज, तो जैसे हमारा ये इंटरम ऑडिट है कि फाइनल ऑडिट का पार्ट है वो. और ये स्टेटस कि भाई पेंडिंग WIP, पेंडिंग फॉर रिव्यू, नीड क्लाइंट कौन से स्टेटस पे है. यहाँ पे यूजर कि ये कौन करेगा इसके ऊपर काम, आशना करेगी, निकिता करेगी, यूजर का नेम आ जाता है. तो ये जो चीज है ये उन्होंने पूरा कस्टमाइज करके बनाया हुआ है. वंस अगेन यहाँ पे जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप प्रैक्टिकली कैसे क्रिएट कर सकते हो. तो आप जैसे यहाँ पे कोई भी एक नई फील्ड ऐड करोगे, इंसर्ट वन लेफ्ट, ठीक है. एंड ओवर हियर इफ यू सी यू विल फाइंड कि आपको क्या रखनी है, फील्ड के अंदर क्या क्या चीज डालनी है. अटैचमेंट डालने हैं, एक चेकबॉक्स वाला फील्ड बनाना है, मल्टी सिलेक्ट वाला फील्ड बनाना है, सिंगल सिलेक्ट बनाना है, यूजर बनाना है, डेट बनाना है, फोन नंबर डालना है. ये आपको डिफॉल्ट ऑप्शंस दे रहे हैं. यहाँ पे काउंट रखना है, क्रिएटेड टाइम, क्रिएटेड बाय, आपको क्या करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे. सो फॉर एग्जाम्पल लेटर से हमको चेकबॉक्स करना है तो हमने फील्ड बना दी. तो ये डन का चेकबॉक्स बनाया तो इधर
टिक आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको लेटेस्ट से सिंगल लाइन टेक्स्ट, जैसे ये जो नोट फील्ड है, ये जो नेम है वो सिंगल लाइन टेक्स्ट है। लॉन्ग टेक्स्ट, ये नोट फील्ड है वो लॉन्ग टेक्स्ट है। डॉक्यूमेंट जो सेक्शन है मेरा, वो अटैचमेंट करके बनाया हुआ है मैंने। मल्टी सिलेक्टिव में अगर आपको करना है कलर कोड, आप ऑप्शन दे दो। ये चेक आ गया। यहाँ पे आप ऑप्शन लिख सकते हो, नोट चेक, क्वेरी। बट ये क्या है, ये आपको सिर्फ सिंगल सिलेक्ट करने देगा, दूसरा सिलेक्ट करने नहीं देगा। जबकि जो मैंने ऑडिट स्टेज में बनाया है और स्टेटस में बनाया है, यहाँ पे मैं मल्टीपल लोगों को डाल सकता हूँ, ठीक है। तो आपको सिंगल सिलेक्ट करना है कि मल्टीपल ऑप्शंस देने हैं, दैट यू कैन क्रिएट द फील्ड। सो बेसिकली you can create the field in the way that you want, right? And accordingly you can create on how you want to manage the whole thing. डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं। अभी जो इसमें सबसे सही बात ये है कि आप अगर यहाँ पे कमेंट करते हो तो ये जो यूजर है उसको ईमेल चला जाएगा। वो जो ईमेल आईडी से एक्सेस कर रही है उसमें उसको ये ईमेल चला गया। तो अगर कोई टीम मेंबर आपका काम कर रहा है और उसको कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वेरी है, तो ओपनिंग बैलेंस का क्वेरी वो यहाँ पे जाके कमेंट कर देगा, आपको ईमेल आ जाएगा। सो इट पॉप्स ऑन योर ईमेल एंड यू कैन रिप्लाई, और उसका रिप्लाई डायरेक्टली आप यू कैन गिव ऑन द कमेंट सेक्शन। सो ईमेल वाला जो फील्ड है, दिस रियली हेल्प्स बिकॉज यू नो एक बार ईमेल आता है तो वी नो दैट ओके वी नीड टू टेक सम एक्शन ऑन दिस। You can always filter out here, for example यहाँ पे ऑडिट स्टेज, सॉरी यहाँ पे स्टेटस में, स्टेटस से मैं नॉट एप्लीकेबल रख देता हूँ, शेयर कैपिटल नॉट एप्लीकेबल। सो हमारे ऑफिस में क्या सिस्टम है कि व्हेन वी स्टार्ट द ऑडिट, वी ओपन आवर एयरटेबल एंड वी डिस्कस द ट्रायल बैलेंस अलोंग विद एयरटेबल, कि भाई इसमें टीम मेंबर को एक ही बार में समझा देने का कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, और वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करते जाएगा एज एंड व्हेन ही फिनिशेस हिज टास्क। सो आई कैन ऑलवेज फिल्टर ओवर हियर। If I audit stage is, sorry, status is pending, तो मेरे पेंडिंग वाली सारी लाइन आइटम्स आ जाएगी यहाँ पे, राइट। तो अगर आपको सिर्फ देखना है कि भाई पेंडिंग कौन सी आइटम्स है, आपको फिल्टर क्रिएट हो जाएगा। दिस इज सिंपल लाइक एक्सेल ओनली बट इन अ डिफरेंट फॉर्म। How do we create an account on this? So you will simply go to Airtable. Airtable.com and then you create the. Yeah. So if you go to Airtable, I'll just do and try to do an incognito. It has to be a office type specific account बनता है, फिर हर यूजर का अकाउंट बनता है। हर यूजर का अलग अकाउंट बनता है। अगर आपको यूजर ऐड करने हैं तो बेसिकली जैसे स्वाति जो है, यहाँ पे मैंने स्वाति का डाला था ना, वो यूजर है, ठीक है। अदर्स माइट नॉट बी यूजर। तो अगर आपको वो ईमेल वाला फंक्शनलिटी यूज करनी है, आप देखोगे तो इतने यूजर है, ठीक है। इसके सिवाय जो भी है मेरे टीम मेंबर कोई यूजर नहीं है। अगर मेरे को इनवाइट करना है, आई कैन इनवाइट फ्रॉम हियर। तो ये ईमेल आईडी वाइज बनता है। सर इसमें पासवर्ड भी है? हाँ, तो जैसे आप एयरटेबल में आपका ईमेल आईडी के हिसाब से अकाउंट बनेगा, ठीक है।
and then every user will have his or her own password, and accordingly they can access. Now, what we have done this year, because they changed their pricing policy, is that once again जुगाड़ी बोल लो आप कि for all other team members we created one email ID, Audit SK Rathi and Company. So all our other team members are accessing from this email ID, one email ID, because इसका जो pricing है, it is based on per user. So we did not want to incur that cost. So we, for everyone else, we created one user ID, one email ID, and everyone accesses from this email ID. और किसने काम किया वो देखना है तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टीम में तो वो होता ही है, अपने को पता होता है कि अपना कौन सा टीम मेंबर किसके ऊपर काम कर रहा है. पासवर्ड चेंज करना होगा तो ओटीपी से होगा ना? नहीं, मोबाइल का ये नहीं है. नहीं, उसमें हाँ, मोबाइल का ऑथेंटिकेशन नहीं है. आई डोंट. how to change password? अभी भी पहली बार कर रहे हो तो आपको साइन अप फॉर फ्री आएगा. जेबी नगर की से करता हूँ. ठीक है, तो आपको शुरू में क्वेश्चन पूछेगा कि आपको किसके लिए चाहिए. तो लेटर से आप बोल रहे हो कि फाइनेंस. दूसरे लोगों को ऐड करना है क्या आपको, वो पूछेगा. तो एक बार के लिए हम उसको स्किप करते हैं. ठीक है, यहाँ पे पूछेगा, देखो स्टार्ट विथ टेम्पलेट्स. तो इसने अलग अलग टेम्पलेट्स दिए हुए हैं. तो हाँ, प्रोजेक्ट ट्रैकर वाला मैंने यूज किया था. प्रोजेक्ट ट्रैकर. ट्राई दिस टेम्पलेट. ये आप देखोगे ना, तो यहाँ पे सारा स्टेटस स्टेटस सब बन गया. तो इसमें से अगर हम बाकी प्रोजेक्ट हटा दें, ओवर हियर यू कैन ऐड टास्क स्टेटस. कॉलम ऐड कर रहे हैं तो वन सेकंड आप देखोगे ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन आइटम्स है, जैसे डॉक्यूमेंट. हाँ Data saved, how big? हाँ, डेटा एवरीथिंग इज ऑन क्लाउड. But if suppose at a certain point of time this site is not working, so then how should we do? Suppose in case. आपका अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है ना, देन इट विल नॉट वर्क. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल नॉट फाइंड एनी चैलेंज. साइट विल ऑलवेज वर्क. That is what I have experienced, because it's like it's one of the very good products out there, and large company. It's a huge company in this field. तो आप एक कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हो. अगर टेम्पलेट अगर आपको स्क्रैच से बिल्ड करना है, you can do that also. Create a base. ठीक है, तो ये आप स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हो यहाँ पे. तो ये कॉलम्स है, इसमें ऐड कॉलम करके आप बना सकते हो अपना. So if you see, like we are using it for most of our clients now. So this really helps. मेरे को कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन देखना हो, अपलोड करना हो, शेयर भी करना हो, तो it really helps. तो हमको पता है कि भाई फाइनल और 26 AS ये वो सारी चीजें
कहाँ पे मिलेगी, सब एक जगह पे यहाँ पे मिल जाएगी। ईसॉप के भी जो भी अग्रीमेंट्स हैं वगैरह वगैरह, ये हम लोगों ने काफी एक्सटेंसिव एक बार बैठ के पूरा चेकलिस्ट बना दिया, एंड देन टीम जस्ट हैज टू फॉलो दिस। जैसे इस आउटपुट लेके इधर डॉक्यूमेंट डाल देना है कि भाई है कि नहीं है, कि भाई कोई रिफंड आया कि नहीं आया, इंटीमेशन ऑर्डर लास्ट ईयर की उसकी एंट्री मारी कि नहीं, तो लास्ट ईयर का इंटीमेशन ऑर्डर यहाँ पे अपलोड कर दिया उस हिसाब से। सो दिस हैज रियली हेल्प्ड अस इन स्ट्रीमलाइनिंग थिंग्स। अभी मेरी टीम भी काफी कंफर्टेबल हो गई है इससे। गूगल ड्राइव से यहाँ पे बेटर यही है, क्योंकि अलग अलग लिंकिंग नहीं देना है आपको, सिंपल डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, और जो नोट सेक्शन है या कमेंट सेक्शन है वहां पे आप अपने क्वेरीज वगैरह डाल सकते हैं, कुछ भी डिस्कस करना है तो वहां पे डाल सकते हैं। और जो हम लोग ने स्टेटस बनाया है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल टीम मेंबर को भी नीड हेल्प चाहिए तो नीड हेल्प में डाल देते हैं। एवरीडे मॉर्निंग जब भी कोई कॉल लेते हैं ऑडिट के ऊपर, तो वी वांट टू सी के भाई किसके ऊपर डिस्कस करना है, तो नीड हेल्प फिल्टर करके डिस्कस कर लिया। सो दिस हेल्प्स। तो आई गेस ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारे लिए एज फार एज नो ऑडिट्स आर कंसर्न, दिस इज वर्किंग सुपरबली ऑन एयरटेबल। एनी क्वेश्चंस ऑन एयरटेबल? सर इसमें ऑडियो ऑडियो वीडियो का फैसिलिटी है? ऑडियो वीडियो का नहीं है इसमें, नहीं नहीं। ऑडियो वीडियो मतलब क्या करना है आपको? क्वेश्चन आंसर होता है तो रिकॉर्ड कर लिए, रिकॉर्ड करके फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है तो कर सकते हो आप। तो उसकी फाइल हाँ। बाकी कमेंट्री डाल सकते हो आप। आई डोंट थिंक यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस डायरेक्टली ओवर हियर, यस दैट इज नॉट देयर, बट हाँ वॉइस रहेगा, प्रूफ हो जाता है, सॉरी, वॉइस से तो प्रूफ हो जाते हैं, हाँ हाँ वो वॉइस को आप फाइल अपलोड कर सकते हो इधर। वॉइस का फाइल हाँ वॉइस की फाइल आप अपलोड कर सकते हो। और दूसरा लिंक्स तो आप दे ही सकते हो। लिंक मिल जाएगा ना। हाँ ये देखो ये फोटो वाला आ रहा है, बोल रहा हूँ ना। फोटो डिसेबल लग रहा है ये लैपटॉप में। कैमरा अलग से attached है। हम्म। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे फोटो आ जाता। ठीक। एनी क्वेश्चंस ऑन एयरटेबल? How can we use it for analysis? Any data? No, data analysis is not the tool for that. It's only for maintaining your documents and audit plan. Basically maintaining working papers. Yeah, working papers, yes, Is the object. correct. So if you see, this is a date column, okay? I have added kickoff dates over here. Now you can also see calendar view. कि कैलेंडर व्यू में भाई कौन से दिन पे क्या काम करना है, अच्छा, हाँ। ये कैलेंडर व्यू में आ गया। Plan for the team is Yes. in the Correct. Then you can also have a Kanban view कि भाई पेंडिंग में कितने हैं, WIP में कितने हैं। So team has to update this. हाँ टीम है, वो तो भाई वो तो बाय डिफॉल्ट है, तो आप कुछ भी करो। वो मैंने बोला ना, तो टीम हैज टू डू दिस, अपडेट दिस। It will take some time, but eventually it becomes easier for the these steps are to be followed for all the audits then, so they also don't have to come back to us for small things, right? और इसमें वो ट्रांजिशन में है ना, वो जो पुराने वाले रहते हैं ना, उनको ही तकलीफ होती है। जो नया आया और ईयर 1 से ये कर रहा है उसको, तो उसके लिए इट विल बी नॉर्मल, उसको लगेगा कि भाई ऐसी ही चीज होती है। So that transitional phase is a challenge. Few 2-3 people who are there from यार पहले तो हम ऐसा नहीं करते थे, that is a challenge, but new people they will adopt very quickly. This is what my experience has been. सर इससे बैलेंस शीट बन जाएगी?
नहीं इसमें सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट सेव होगा और कुछ नहीं होगा। इसमें देखो डॉक्यूमेंट सेव होगा, आपको क्या करना है, आपके आर्टिकल को जब भी आप ऑडिट देते हो तभी ये खोलना है, उसको इंस्ट्रक्शन देने हैं कि भाई तेरे को ओपनिंग बैलेंस में ये 5 स्टेप फॉलो करने हैं और ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। आपका आर्टिकल वो करेगा जब तक ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट आपको ये खोलना है और डिस्कस करना है कि भाई ये ओपनिंग बैलेंस में ये हुआ कि नहीं हुआ। वो स्टेटस में डालेगा कि सर WIP है वगैरह है, आप उसको बोलोगे भाई कल भी यही कर रहा था, आज भी यही कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्टेटस अपडेट होते जाएगा, आप उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन करते सकते हो। यहाँ से आपका पूरा ट्रैकिंग रह रहा है कि भाई एरियाज का ट्रैक होगा, ओपन एरियाज कौन से है वो ट्रैक होगा आपका यहाँ पे। और एक एक करके आप क्लोज कर रहे हो और खत्म होने के बाद पूरा सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, तो आपका जो पूरा ऑडिट का जो फाइल है वो यहाँ पे बन जाएगा, पूरा फाइल एक ही जगह पे बन जाएगा। पेंटिंग काम मालूम पड़ेगा, करेक्ट। इसका हम लोग को जैसा बैकअप डाउनलोड कर सकते हैं, हाँ एक्सेल में होगा। With डॉक्यूमेंट्स documents. वगैरह भी जो अपलोडेड है Yes, yes. वो ऐसे फोल्डर वाइज डाउनलोड हो हाँ, जाते हैं। यस। अभी मैं आपको एक Yes. मिनट, अभी आप ये देखेंगे ये मेरे प्रीवियस ईयर का एक का है, ठीक है। तो इसमें सब पूरा भरा हुआ है कि भाई ये इधर इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी डाले हुए हैं कि ये ऐसा है, ये भाई ये डिफरेंस ऑफ 110 रुपीज इज ओपन चलान ऑन TDS पोर्टल, ये TDS के सारे चलान्स आ गए, ऐसे टैक्स ये वो। यहाँ पे टू बी डन फॉर इनवॉइसेस नॉट रिफ्लेक्टेड इन टू बी, यहाँ पे GST कंप्लायंस की सारी फाइल्स यहाँ पे मेरी अपलोड हो गई, जो भी रिकंसिलिएशन फाइल्स है, जो भी वर्किंग है फाइनल वो यहाँ पे अपलोड हो गए। शेयर कैपिटल एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स पेंडिंग फ्रॉम CS लिखा रहेगा, तभी बाद में कंप्लीट हो गया है सब। तो यहाँ पे पूरा शेयर कैपिटल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वगैरह, शेयर्स एंड डिबेंचर्स का पूरा जिप फोल्डर इधर आ गया उसका। फिक्स असेट देखो यहाँ पे, किसने किया उसका एडिटिंग भी मिल जाएगा। क्या यहाँ पे लिखा है ना, दर्शन ने किया हुआ है ऐसे। स्टॉक रजिस्टर, डेटर, क्रेडिटर, उसके पासवर्ड काम कर रहा है तो उसका नाम आएगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, इमीडिएट डीड ऑफ असेट, 26 years रिको, एवरीथिंग। तो बेसिकली वंस इट इज कंप्लीटेड नाउ आई नो कि चलो मेरे को GIPL का अगर देखना है तो यहाँ पे जाके सारे डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, मेरे को मिल जाएगा 21 22 का जो भी आप मांगो यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मेरे को peer review के देना है, I can just simply give access to this, that see this is how I have maintained my documentation, that's it. अभी मैं आपको अभी देखो ये मेरा FY 22-23 का है जो ऑन गोइंग है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पेंडिंग पेंडिंग, अभी इसने डॉक्यूमेंट नहीं किया है। ये जो टीम मेंबर है मेरा, इसने इधर लिंक दे दिया है कि ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ओपनिंग बैलेंस का खुल जाएगा फोल्डर। तो उसने रिमार्क भी लिखा है यार मैचिंग, तो आपको देखना है कि नहीं देखना? यस यस, यहाँ पे कंप्लीटेड मतलब इट इज अज्यूम की मैचिंग। अभी यहाँ पे लिखा है उसने बेचारे कि Amazon 20 रुपीज डिफरेंस, रेस्ट ऑल इज मैचिंग। FD इंटरेस्ट मैचिंग लिख दिया उसने, है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पे जहाँ पे भी अंडरलाइन है मतलब वहां पे उसने लिंक दी हुई है। ये जो पेंडिंग फॉर क्लाइंट है, पता है पेंडिंग फॉर क्लाइंट है, तो उसके लेवल पे चला गया। हाँ कि वो क्लाइंट के ऊपर है। क्या मतलब मिस्टेक है डिफॉल्ट के, समझा नहीं। हाँ उधर है ना, अटैचमेंट है ना। देखो TDS डिफॉल्ट 230 रुपीज प्रायर पीरियड, तो उसने स्क्रीनशॉट डाल दिया कि भाई 230 रुपये का डिफॉल्ट आ रहा है, इसको करना है ठीक, पेंडिंग फॉर क्लाइंट। इसका प्राइसिंग का क्या है एयरटेल का? Must be based on space Yeah. and users. Yes, use space and users. So this is I wanted to show you ongoing one. So what we are doing is like
इसके अंदर हर एक टास्क मेंशन्ड है, उसके अंदर कमेंट में भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या रियलाइज किया कि इसको सिंपल रखने का, जो नोट सेक्शन है ना उसको यूज करने का, यहाँ पे लिख दिया, बोल्ड है ना मतलब काम चालू है, बाजू में रिमार्क डाल के वो डिस्कशन होते रहते हैं फिर एवरीडे कि भाई ये लाइन आइटम पे ये है, ये लाइन आइटम पे ये है. Now if we come to pricing, Sir, how to know it is always complete? हाँ Data complete हो गया कैसे पता लगे? यहाँ पे दिखेगा ना, कंप्लीटेड का पेंडिंग है तो उसमें कुछ क्या यहाँ पे कंप्लीट है मतलब कंप्लीट है, फिर उसको मांगने का आपने भाई ये किया कि नहीं. ये लोग का सिक्योरिटी का है कि दिस इज द सिक्योरिटी दैट यू आर यूजिंग एन इंडिविजुअल टेबल या CSV फाइल दैट कैन बी डाउनलोडेड मैनुअल बैकअप के लिए, एंड दिस इज देयर प्राइसिंग. इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ. सो वी आर यूजिंग फ्री वर्जन एज ऑफ नाउ, जिसमें अनलिमिटेड बेसिस है, मतलब अनलिमिटेड आप ऑडिट फाइल्स कर सकते हो और हर ऑडिट फाइल के अंदर 1000 रिकॉर्ड रख सकते हो. तो ये जो भी है ये सारा रिकॉर्ड बना जाता है. तो ये जो भी है ये सारी चीजें रिकॉर्ड मानी जाती है. तो अपना 1000 तो बहुत हो गया, अपने को ऑडिट ग्रुप से ज्यादा होता नहीं है. ठीक है, सो इट वी हैव गॉट इनफ फॉर दैट. अप टू 5 एडिटर्स, 5 लोग को आप दे सकते हो. इसके लिए हमने पहले ये रिस्ट्रिक्शन थोड़ा ज्यादा था, तो हमने अरब को यूजर बनाया था. अभी हम लोगों ने क्या किया कि सारी टीम के लिए एक ही ईमेल आईडी के थ्रू एक्सेस दे दिया. 1 GB ऑफ अटैचमेंट पर बेस, तो हर ऑडिट के लिए 1 GB मिल रहा है आपको. ठीक है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो इनफ, 1 GB. एंड ऑटोमेशन रन्स वगैरह तो हम कुछ यूज नहीं कर रहे हैं. सो अब अभी के लिए तो फ्री वर्जन इज वर्किंग फॉर अस. पेड वर्जन इज ₹20 पर यूजर पर मंथ. $20, सॉरी, $20 पर यूजर पर मंथ. हाँ, 1600 रुपये. So this was about Airtable. Any questions? Now let us move to Zoho projects. So Airtable में आपने देखा कि जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि आपको ऐसे ही मिलेगा. जब भी आप अकाउंट बनाओगे एयरटेबल का तभी ऐसा मिलेगा, और इसके ऊपर आपको सब बिल्ड करना पड़ेगा. अलग कॉलम्स वगैरह बना के, यूजर का कॉलम बनाया, डॉक्यूमेंट का कॉलम बनाया, ये सब हमको करना पड़ता है एयरटेबल के अंदर. ठीक है, वो ब्लैंक स्लेट है लाइक एक्सेल, बट विथ बेटर फंक्शनलिटीज. जैसे एक्सेल में आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते, यहाँ पे कर सकते हो. करेक्ट. तो दिस इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट. दिस इज व्हाट इज एयरटेबल. बट नाउ इफ यू कम टू जोहो प्रोजेक्ट्स, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी बनी हुई रहेगी. तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले तो आप प्रोजेक्ट्स में जाओगे और अलग अलग ऑडिट अपने यहाँ पे क्लाइंट के नाम रहेंगे. तो इसको आप टेम्पलेट बनाओगे. ठीक है, ऑडिट चेकलिस्ट टेम्पलेट. ठीक है, नया प्रोजेक्ट बनाना है आपको कभी भी, तो आप टेम्पलेट सिलेक्ट करके बना दोगे कि भाई ABC ऑडिट. तो एक बार आपने टेम्पलेट बना दिया तो हर एक ऑडिट के लिए वो बन जाएगा, फिर आपको सिर्फ ऐड करना है. ठीक है, तो अब अपना ABC ऑडिट बना और ये डमी चेकलिस्ट, ऐसे आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं वैसे
बन जाएंगे। नाउ वंस आई मीन जब ये आप बना रहे हो फर्स्ट टाइम, तभी आप क्या करोगे, जैसे मैंने आप देखोगे यहाँ पे टास्क लिस्ट बनाओगे आप, ऐड टास्क लिस्ट यानी इसके अंदर टास्क रहेंगे। तो ब्रॉड सेक्शन लेट अस से जीएसटी कंप्लायंसेस, ठीक है, तो ये आपका टास्क लिस्ट बना। अभी जीएसटी कंप्लायंस के अंदर जीएसटी टैग भाई जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 1 रिकॉर्ड, ठीक है, एक बार के लिए हम इसको ऐसे ही ऐड कर देते हैं। फिर जीएसटीआर 2B रिकंसिलिएशन मैं रैंडमली डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर आप ये भी डाल सकते हो कि भाई चेक, ओके। तो ऐसे आपने टास्क बना दिए। सर एक क्लाइंट मास्टर फाइल जैसे आप चाहिए क्लाइंट मास्टर फाइल वाला कॉन्सेप्ट इधर नहीं रहेगा, यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनेंगे आपके सिर्फ, यहाँ पे क्लाइंट वाइज नहीं होगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल जीएसटी कंप्लायंस हमारा बना, ठीक है। अभी जब भी आप ये जो टास्क बना है इसके अंदर आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तो ठीक है, सिलेक्ट टीम्स, तो भाई कौन सी टीम को देना है, डायरेक्ट टीम लेवल पे आप दे सकते हो या डायरेक्ट यूजर लेवल पे दे सकते हो। यहाँ पे आपके दूसरे टीम मेंबर्स का ईमेल आईडी रहेगा कि भाई ये यूजर को करना है। जब भी वो वर्कर्स हैं, ये स्टैंडर्ड है कि फ्लेक्सिबल है, तो इसमें कितने घंटे में होना चाहिए, ये 2 घंटे में होना चाहिए काम, ठीक है। तो डाल दिया आपने, कभी स्टार्ट करना है कभी एंड करना है, ये सब ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो दैट्स फाइन, ओके। रिकरेंस वन टाइम है, रिकरिंग है वगैरह, तो अपना तो सब वन टाइम ही रहेगा ऑडिट के पर्सपेक्टिव से। अभी इसके अंदर भी आपको सब टास्क डालना है तो आप डाल सकते हो, उसका मॉड्यूल ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। अभी जब भी वो यूजर काम कर रहा है तभी वो लॉक कर सकता है आर्स कि भाई अभी मैं 3B वर्सेस 1 पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो टाइम डाल सकता है, ठीक है, कि भाई मेरे को इतना घंटा लगा इस काम करने को, या इतने बजे से लेके इतने बजे तक मैंने काम किया, कि भाई 1 घंटे के लिए काम किया मैंने, ठीक है, इसके ऊपर तो लॉक कर सकता है। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे अपलोड कर सकता है वो, वंस अगेन वर्किंग फाइल्स एक्सेट्रा कैन बी अपलोडेड ओवर हियर, ठीक है। ये हमारे काम का नहीं है। कुछ इश्यूज है तो वो इशू को यहाँ पे सिंपली क्रिएट कर सकता है नया इशू, कि भाई क्लाइंट नॉट गिविंग डेटा, किसको देना है ये असाइन, इसको इसको रिमाइंडर देना है क्या, रिमाइंडर टाइप डेली बेस्ड ऑन ड्यू डेट स्पेसिफिक डेट, ऐसे आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो। इतना सीवियरिटी है, ये सारी चीजें जो भी यूज करना है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे को रिमाइंडर आएगा। तो जो सब फुल फॉर्म है नहीं, कंपनी का नाम ही जो है, यहाँ पे कमेंट्स वगैरह डाल सकते हैं उसको, जैसे सिंपल थिंग दैट विल बी डू इज दैट कमेंट के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे और कमेंट के टाइम पे अटैचमेंट फाइल वो यहाँ पे फाइल्स अटैच भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे वंस अगेन एक्टिविटी स्ट्रीम होता है भाई किसने क्या काम किया है इसके ऊपर,
तो अगर आपको ऑनर को काम कराना है कि भाई जो भी तुम काम कर रहे हैं वो लॉग करो उसको, तो यहाँ पे टाइम शीट वगैरह मेंटेन करना है तो सारी चीजें यहाँ से हो जाएगी। आपका टाइम शीट वगैरह रिकॉर्ड होगा, बट ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे क्या करना होगा, जो टीम मेंबर है उसको बाजू में खोल के ही रखना होगा और वो यहाँ पे सारी चीजें अपडेट करे जा रहे हैं। अगर वो एक्सेल में भी वर्किंग बनाना है तो एक बार बना के यहाँ पे अपलोड कर दिया और यहाँ पे जो भी कमेंट डालना है वो उसे डाल दिया। तो एकदम रियल टाइम बेसिस पे अगर इस पे काम कर रहा है किसी को, तो दैट कैन रियली हेल्प। वंस अगेन स्टेटस वाइज तो आप कर ही सकते हो कि इन रिव्यू, ऑन होल्ड, डिले। स्टेटस आपको अलग कुछ बनाना है तो आप अलग भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इन रिव्यू है, क्या है, तो स्टेटस वाइज आपको चीजें मिल सकती है। तो आपके जितने भी टास्क रहेंगे ऐसे दिखेंगे आपको। और वंस अगेन सर्टिफिकेशन का कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना है, यहाँ पे यू कैन सिंपली अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, अटैच हो गया फाइल। फाइल अटैच हो गई इधर। एवरीथिंग कैन कम ओवर हियर। नाउ दिस कैन आल्सो गिव अ बाय डिफॉल्ट कैलेंडर व्यू, क्योंकि आपने डेट डाली है। अगर आप डेट डालोगे तो आपको कैलेंडर व्यू मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे गैंट चार्ट है ये, कि भाई कौन से टाइम से लेके कौन से टाइम तक मैंने डाला था, 9 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक स्टार्ट डेट एंड डेट, तो दिख रहा है यहाँ पे कि ये ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे डाला नहीं है। आप हर एक टास्क में अगर डेट्स डालोगे तो यहाँ पे दिखते जाएगा कि ये इसके बाद ये शुरू होने वाला है, इसके बाद ये शुरू होने वाला है। यहाँ पे टाइम शीट्स, आपको यूजर वाइज टाइम शीट मिल जाएगी आपके टीम मेंबर्स की। यहाँ पे एसके राठी कंपनी की दिख रही है कि भाई उसने क्या काम किया, 9 तारीख को 1 घंटा क्या काम किया। यहाँ पे उसका पूरा लिस्ट आ जाएगा कि भाई 9 तारीख को उसने ये सारे टास्क के ऊपर काम किया हुआ है, कौन से प्रोजेक्ट में। यहाँ पे आपका क्लाइंट का नाम आ जाएगा और यहाँ पे टास्क आ जाएगा। तो हर एक यूजर वाइज जो है आपको पूरा का पूरा जो टाइम शीट है वो मिलना शुरू हो जाएगा। अगर इशू वो वाला फीचर यूज कर रहे हैं, जैसे मैं टीम मेंबर को क्या बोलूंगा, आप इशू वाला फीचर यूज करो, ताकि मेरे को पता है कि भाई मेरे को सिर्फ ये सेक्शन देखना है, हर एक में अंदर जाके कमेंट्स नहीं चेक करना है। मेरे को ये सेक्शन देखना है मेरे लिए, कि अगर आपका कुछ क्वेरी है मेरे से कोई डिस्कस करना है तो आप इशू वाला सेक्शन करो। तो अगर समझो यहाँ पे वो देता है क्लाइंट नॉट गिविंग डेटा सिर्फ डाला है, तो मेरे को पता चल जाएगा कि वो कौन से टास्क के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे है। देन आई कैन सी एंड आई कैन सी अदर थिंग्स ऑल्सो, टेक अदर एक्शंस ऑल्सो। देन यू ऑल्सो हैव डिफरेंट व्यूज। ये जैसे ये क्लासिक व्यू है, यहाँ पे भी आप कैनवन व्यू यूज कर सकते हो कि भाई कौन से ओपन है, कौन से इन रिव्यू है, कौन से क्लोज्ड है टास्क। एवरीथिंग कैन कम ओवर हियर। इधर से आप इधर शिफ्ट करते हो तो इन प्रोग्रेस में ऐसे स्टेटस उसका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पूरा काम हो रहा है वो यहाँ पे फील्ड आते जाएगा कि भाई क्या काम हो रहा है। और जैसे जैसे अपडेट करते जाएगा कौन बंदा क्या काम कर रहा है आइटम के ऊपर, वो पूरा इधर आते जाएगा। ये पूरा एक्टिविटी स्ट्रीम कि भाई इस तरह ये पूरा जो भी ऑडिट ट्रेल है ना, ये हर एक मिनट का हिसाब आपको बताएगा कि किसने क्या काम किया। अगर ये ब्लैंक आ रहा है मतलब कोई सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा है, ऑडिट पे काम नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें जब ये रिमोट वर्क करते हैं ना तभी बहुत हेल्प करती है कि भाई क्या कर रहा है। एक तो है कि उनको बोलना है कि भाई तुमको ये इसके हिसाब से ही काम करना है, और तुम जब भी काम शुरू करोगे तभी ट्रैकिंग शुरू करो टाइम का।
यहाँ पे वो बंदा कंप्लीटेड परसेंटेज भी डाल सकता है कि भाई कितना परसेंटेज उसका काम कंप्लीट हुआ है, बैंक रिकंसिलिएशन 40% हुआ, 50% हुआ, क्या हुआ, दैट ही कैन डू. आई थिंक एकदम ही सिस्टमेटिक तरीके से करना है तो दिस इज अ ग्रेट टूल आउट हियर. वंस अगेन आपको यहाँ पे चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी आपकी. एक बार के लिए जो प्रोसेस है ना वो आपको सेट करना पड़ेगा. बट वंस यू द प्रोसेस इज देयर, द आइटम्स आर देयर, इट इज टेकन केयर ऑफ. जो नॉट एप्लीकेबल है वो यूजर नॉट एप्लीकेबल डाल देगा स्टेटस में, तो काम खत्म हो गया. यहाँ पे फिर अगर लिस्ट बड़ा नहीं दिखना है, वंस द वर्क इज कंप्लीटेड यू कैन मार्क दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एज इनएक्टिव. आर्काइव करके आप डाल सकते हो उसको. सो अगर टाइमशीट फंक्शनैलिटी यूज करनी है देन यू कैन यूज दिस. यहाँ पे देखो प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल भी आएगा कि ये प्लान्ड 2 आवर्स, एक्चुअल 1 आवर यूजर का, और इधर टास्क आ जाएगा कि क्या प्लान था और कितना एक्चुअल घंटा लगा हर एक टास्क पे. यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो एसक्यूआरटी ये यूजर को ये टास्क दिया है 2 घंटे का, तो किसको कितने टाइम का टास्क दिया हुआ है अगर आप पूरा डेटा डाल देते हो एक बार प्रोजेक्ट में टाइमलाइंस के साथ, तो उसके रिलेटेड सारे रिपोर्ट्स वगैरह कौन कितना बिजी रहता है सारी चीजें दिखना शुरू हो जाएगी आपको. ये टास्क रिपोर्ट ओपन कितने हैं, इन प्रोग्रेस कितने हैं, रिव्यू कितने हैं, स्टार्ट एसक्यूआरटी इन कंपनी का क्या स्टेटस है, टास्क स्टेटस बाय प्रोजेक्ट, हर एक प्रोजेक्ट में कितने ओपन है, कितने प्रोग्रेस है, कितने रिव्यू में है. 40% ऑफ टोटल टास्क आर कंप्लीटेड. बट इसमें यूज करने में डिसिप्लिन चाहिए तो ही होगा, अदरवाइज सिस्टम विल नॉट वर्क. यू नीड टू हैव lot of discipline to use the system in a way. So one thing that we are using Airtable is like it is a gradual progression. अगर कोई Airtable में एक बार के लिए डेटा भी नहीं डाल रहा है, उसको मैं बोलूँ कोई तू टाइम शीट डाल, तो होने से रहा, राइट. तो धीरे धीरे जैसे जैसे फर्म बड़ी होती है, हमको धीरे धीरे डिसिप्लिन भी थोड़ा इंक्रीज करना जरूरी हो जाता है. तो नेक्स्ट ग्रेजुएट स्टेप फॉर अस इज ऑल्सो दैट let us say from next year or a year after that we will move to projects, and then we will expect them to add time sheet, all those things. But क्या अभी से ही अगर हम उनको ये सारी चीजें बोलेंगे तो जो कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे. सर अटेंडेंस इसी बेसिस पे लगती है, जो हाँ, करता है वो correct है. लगती है, नहीं तो नहीं लगती. absence लग जाता है. यस. बैंक रिकंसिलिएशन कब बंद हो जाए? क्या बैंक रिकंसिलिएशन कब से बंद हो जाए? मतलब? ये तो सब इंस्टेंट पेमेंट है ना सर. सर एकदम सब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हैं. बैंक की पेमेंट ऑल ओवर. वही कभी भी नहीं बंद नहीं होती, जिंदगी भर नहीं बंद होती. बैंक रिकंसिलिएशन तो चलते रहेगा. आप जब तक चेक इशू करोगे तब तक चलेगा. चेक इशू करो, सर चेक बंद हो गए. चेक इशू अगर कोई कंपनी नहीं करेगा तो नहीं होएगा. फिर चेक लेना देना बंद कर दो तो बैंक रिकंसिलिएशन बंद. इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट किया तो चेक बुक नहीं है. हाँ, अगर चेक नहीं है तो कुछ नहीं. लेकिन क्या आपने ऑन द बाउंड्री जो अभी ईयर एंड के बाद एडजस्टमेंट का याद आया तो क्या करोगे? ईयर एंड के बाद एडजस्टमेंट का याद आया वो तो बैंक मेंटेन कर रहे हैं ना. और बैंक अकाउंट शुड बी एज पर बैंक स्टेटमेंट. यस यस, उसी नहीं बनाना. सब बैंक के पास है.
तो टैली बोल रहे हैं ना, बहुत सी बैंक उनके हिसाब से मतलब डेटा पूरा हाँ वो होता है, तो इनफैक्ट जो में भी होता है कि जो ट्रांजेक्शन है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन आपको वहां पे कैटेगराइज करना पड़ता है। तो आप जो बोल रहे हो सही है कि अभी बैंक रिकंसिलेशन में जो लाइन आइटम्स है वो बहुत सारे बिजनेसेस में नहीं होती है। जैसे मेरे भी 95% क्लाइंट में बैंक रिकंसिलेशन होता नहीं है, बिकॉज चेक इशूड और पेड ही नहीं है। बट कुछ कुछ जगह पे तो रहने ही वाला है वो। Correct. Actually, if you use this software QuickBooks and So, yes, yes. 90% आपका काम सीए का काम खत्म हो गया। Yes, yes. हम लोग जो इनफैक्ट वी आर, एज आई मेंशन, वी आर जो फाइनेंस इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स, तो हम लोग काफी एक्सटेंसिव यूज करते हैं। यस यस। बैलेंस शीट के लिए इनफैक्ट आप जैसे जो में रूल सेट कर देते हो कि भाई उबर मतलब कन्वेंस, एक बार डाल दिया तो फिर अगली बार आपको वो अकाउंटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डालते जाएगा। उबर आया मतलब कन्वेंस का खर्चा है, बैंक स्टेटमेंट से जल्दी खर्चे बढ़ा खर्चे में डाल देगा वो। करेक्ट है। बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिक आता है। हाँ। एवरी डे विल गो एंड चेक Yeah, fetch, it will fetch. will come directly in the Correct. It will fetch your transactions. updated account every day. Yes. They just have to categorize. One time. And in fact, not be any manual interface. बैंक स्टेटमेंट इधर गया पैसा कहाँ से आया किसका आया तो बैंक रख रही है ना आपका, वो बैंक के साथ टैली ने किया है और सब अरेंजमेंट को बैंक के भी कॉल कर दीजिए। yes, yes. So वो लेवल मतलब जो अकाउंटिंग का जो काम है ना, वो धीरे धीरे फेज हो गया। डेफिनेटली टिकट होगा। इनफैक्ट जैसे जो में कैसा है कि इफ लेटर से वेंडर लोग आने वाले, वेंडर और कस्टमर बोथ आर यूजिंग जो, तो वेंडर ने अपना डाला सेल्स ऑर्डर, तो कस्टमर वाले जोन में अगर उसने परमिशन दी है तो ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर आ जाएगा। तो then you don't have to do accounting again. Everything is on cloud. कस्टमर इनवॉइस से इसलिए होगा चला है। हाँ, वो ऑनलाइन है वो सिस्टम तो धीरे धीरे वो लोग क्या सेल्स और परचेज के लिए भी लाएंगे, उनके लिए करना इजी है। इट इज जस्ट दैट दे हैव टू सी ना कि अगर वो अलग अकाउंटिंग लेजर यूज कर रहा है, हम अलग अकाउंटिंग लेजर यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें है। बट वंस अगेन ड्राफ्ट मोड में आपका आना शुरू हो जाएगा, आपका बेसिक डिटेल्स आ गए, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना है करो, अप्रूव करो, आगे बढ़ो। सो लॉट ऑफ ऑटोमेशन विल कम, मतलब डेटा एंट्री एक ही तरफ से होगी इनफ है, सिर्फ सेल इनवॉइस जाना चाहिए, बाकी सब इज टेकन केयर ऑफ। जैसे जीएसटी में वही हो रहा है ना, सेल इनवॉइस हो रहा है, आपका टू बी रेडी है, उसके हिसाब से ही क्रेडिट लेना। सेल इनवॉइस डाल दे, आपके बैंक में उस पार्टी का पेमेंट आ गया, उनकी एंट्री हो जाती यस यस। आपने परचेज का एंट्री डाल दिया, हाँ। पार्टी को पेमेंट जैसे आपने रिलीज करना है, डेट डाल दी, हाँ। तो पैसा निकल जाना चाहिए, तो विल मेक द पेमेंट ऑटोमेटिकली एंड मेक द एंट्री। करेक्ट। सो इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक और एचएसबीसी के साथ you can make the payment directly from Zoho Books. Yeah. So your payment entry, the act of making the payment and doing accounting entry are merged. It is not that कोई payment करेगा और कोई accounting entry करेगा, वो दोनों एक ही बार में हो गया, एक ही बार में हो गया वो। और दूसरा जो मेन चीज जो मैं देख रहा हूँ, हम तो काफी क्लाइंट्स को हेल्प कर रहे हैं कि ये सब में है ना डेबिट क्रेडिट की नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। सिंगल एंट्री, डबल डेबिट क्रेडिट की कुछ जरूरत ही नहीं है। उसको आप पूछोगे जिसने एंट्री किया है कि क्या डेबिट हुआ और क्या क्रेडिट हुआ, उसको कुछ नहीं समझेगा, बट एंट्री बराबर किया रहेगा उसने। एंट्री एकदम परफेक्ट किया रहेगा उसने। डेबिट क्रेडिट पूछोगे कि अभी इसमें टीडीएस का उसने सिलेक्ट कर दिया कि भाई टीडीएस पेबल उधर ही आता है जो बुक्स में 10% प्रोफेशनल फीस, तो कैलकुलेट भी कर दिया, हो गया। उसको पूछोगे ना ये टीडीएस पेबल डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ, वो नहीं समझेगा उसको। बट एंट्री बार परफेक्ट करेगा वो। सिस्टम जेवीज आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। फैक्ट वी आर यूजिंग जोहो पेरोल, तो पेरोल में भी पेरोल रन कर दिया आपने तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री ऑटोमेटिक। इनफैक्ट जीएसटी में बेस्ट सबसे ज्यादा फायदा होता है हम लोगों को। जीएसटी आपने रिटर्न फाइल कर दिया ना, तो जीएसटी 3B जो फाइल हुआ है उसके हिसाब से सेट ऑफ एंट्री मार देगा वो बुक्स में। वो आउटपुट लायबिलिटी के लेजर को डेबिट करना है, इनपुट को क्रेडिट करना है, कैश लेजर को एडजस्ट करना है, उस पूरा जो सेट ऑफ एंट्री बनती है एज पर योर 3B फाइल, बुक्स में भले कुछ भी हो, 3B में जो सेट ऑफ का टेबल बनता है ना,
उसके हिसाब से परफेक्टली उठा के वो जीवी मार देगा वो सिस्टम में, सो दैट क्योंकि उसमें तो पब्लिक बहुत मिस्टेक करता है इन सेट ऑफ एंट्री मारने में। तो वो सब एकदम वंस अगेन वो जो बंदा ने मार्केस फाइल किया है उसको डेबिट क्रेडिट कुछ समझ में नहीं आया, बट आपकी सेट ऑफ एंट्री परफेक्ट हो गई। उसको सिर्फ मार्केस फाइल ही करना है। So any questions on Zoho projects? Projects is little high and. हाँ, correct. तो मैंने उसी हिसाब से ले लेते जा रहा हूँ। But it is, I guess, depends on how complicated you want to make it. Basically, if I will start, तो मैं simply जो Airtable में किया है ना, वही करूँगा कि भाई इसको simple view यहाँ पे डालो, यहाँ पे 3B वर्सेस 1 किया ना, कंप्लीट डालो और डॉक्यूमेंट चढ़ाओ, बस इतना ही करो। पहले उतना ही कराएंगे हम उसको, फिर उसको बोलेंगे अच्छा तुमको क्वेश्चन है तो इश्यूज में डालो, तो ये थोड़ा इंप्रूव हुआ, फिर उनको धीरे धीरे बोलेंगे कि भाई तुम्हारा टाइम डालो कितना गया, हम भी सेट करेंगे कि अच्छा इसमें इतना टाइम जाना चाहिए वगैरह। तो स्लोली एंड स्टेडीली, इफ यू एट द एंड ऑफ द डे उस डेटा का कोई मतलब भी होना चाहिए, क्लाइंट तो फीस उतना ही देने वाला है। कितना भी हाँ वही। और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है टाइम शीट देख के अपने को ही दुख होता है, और कुछ नहीं होता, आउटकम और कुछ नहीं होता है, दुख ही होता है हमको। क्लाइंट तो जीएसटी रिटर्न का उतना ही पैसा देने वाला है। We'll quickly move to next one. So this is the pricing. This is 280 rupees per user per month, and unlimited projects. Once again, you get 100 GB of data, which is more than enough, and subtask reminder ये सारी चीजें। तो अपने को enterprise वाले की जरूरत नहीं है। Project templates भी 20 are more than enough. आपका audit का template तो एक या दो ही होगा, 20 भी नहीं होगा। तो इसमें टाइम शीट वगैरह सब कुछ है, टाइम ट्रैकिंग है, प्रोजेक्ट प्लान वर्सेस एक्चुअल है। तो वंस अगेन 280 रुपीज पर यूजर पर मंथ इज, आई मीन, आई थिंक वर्थ द मनी, बिकॉज आपका जो मॉनिटरिंग जो है, मैनेजर का जो रोल है, वो बेसिकली सिस्टम करना शुरू कर देता है। नाउ लेट अस कम टू ऑडिट मैनेजमेंट। ये अभी तक जो हमने 3 सॉफ्टवेयर देखे, इसको वो ऑडिट के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन हम उसको हाथ पैर मार के ऑडिट के लिए यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी वन सॉफ्टवेयर व्हिच इज डिजाइन्ड फॉर ऑडिट्स एंड फॉर इंडियन सिनेरियो। ओके, सो आई हैव गॉट फ्यू स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम दैट सॉफ्टवेयर। आपकी कितने, मतलब ये टोटल क्लाइंट्स के ऑडिट कितने चल रहे हैं, इस यहाँ पे भी टाइम शीट ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ होता है इसमें, कि स्टेप्स यानी सब टास्क, ठीक है, खर्चे की भी डिटेल डाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा ये मैं एज यूजर, दिस आर माय एलोकेटेड क्लाइंट्स एंड दिस आर माय असाइनमेंट्स, और ये असाइनमेंट का एक कोड बन गया। ये कौन से पीरियड एंड के लिए है, मार्च 18, मार्च 17, स्टार्ट डेट क्या भी है और एंड डेट कभी है, मेरे को कभी खत्म करना है उसको, और कितने घंटे बुक हुए और कितने दिन से चल रहा है। So now if you see, यहाँ पे जो स्टेप वगैरह है ये ऑलरेडी ये लोग ने बना के दिए, मतलब वो जो हम जो चेकलिस्ट है वो नहीं है, ये लोग के पास खुद के पास ही चेकलिस्ट है जो उन्होंने बना के दी है, बिकॉज वंस अगेन इट इज क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर ऑडिट्स एंड फॉर इंडियन clients, right? So they have gone through the best practices and they have already created this checklist. You just have to identify whether it is applicable or not applicable. आपने एक बार बैठ के वो पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए कौन सी लाइन आइटम्स एप्लीकेबल है वो टिक कर दी, तो आपके लिए आपका जो चेकलिस्ट है वो रेडी हो गया। असाइन टू रिव्यूअर कौन है वो डाल सकते हो आप। यहाँ पे आपको दिखेगा पूरा कि ऑडिट प्लानिंग स्टेज पे क्या है, क्लोजर पे कौन सा है, एग्जीक्यूशन में कौन सा चल रहा है वगैरह। हाँ, अभी आप देखोगे तो आप देखो ये जैसे इंटरनल ऑडिट में अटेंडेंस का टास्क है, तो ये जो स्टेप्स है
टास्क है इनके, ये ऑलरेडी बने हुए हैं. क्रॉस चेकिंग अटेंडेंस रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय टाइम ऑफिस एंड रिपोर्ट्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑन डेली बेसिस. So one good feature over here is that there is a lot of IP कि भाई मेरा इंटरनल ऑडिट का चेकलिस्ट क्या होना चाहिए, वो यहाँ पे ऑलरेडी है टास्क वाइज, राइट. ये हमको खुद से नहीं बनाना है. यहाँ पे कमेंट्स डाल सकते हैं और फिर उसको मार्क एज क्लोज्ड, ओपन, सेव, ऑब्जर्वेशंस. once again your documentation reference can also come over here. You simply have to upload. यहाँ पे आप नंबर ऑफ आवर्स वर्क डन, टाइम शीट पूरा मैनेज कर सकते हो, ठीक है. और जो एक्सपेंसेस है वो रिकॉर्ड कर सकते हो. तो असाइनमेंट वाइज एक्सपेंस और टाइम शीट ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा. तो ब्रॉडली इट इज सिमिलर टू प्रोजेक्ट्स, बट एवरीथिंग इज लाइक क्रिएटेड फॉर यू फ्रॉम एन ऑडिट पर्सपेक्टिव, बिकॉज ये ऑडिट के लिए ही बना हुआ है सॉफ्टवेयर. आपको सिर्फ उसको यूज करना शुरू करना है. और टाइम शीट वंस अगेन वी नीड टू इंश्योर दैट टीम मेंबर्स यूज कर रहे हैं सो दैट वी कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट. यहाँ पे आपको फर्म लेवल पे डिटेल्स मिलेगी. तो ये सारी चीजें प्रोजेक्ट हेयर टेबल वगैरह पे कुछ नहीं है. टाइम शीट मिलेगा, अटेंडेंस मिलेगी, इनवॉइसिंग डायरेक्टली यहाँ से हो सकता है क्लाइंट को, एंड असेट मैनेजमेंट पूरा हो जाएगा आपका. Per hour tracking can happen at resource level wise, intern, manager, partner, client budgeting, rollover feature. Task can reopen at manager level, and data sharing request from software and client. Client भी directly अपने login से documents upload कर सकते हैं कि भाई उसको इसका एक्सेस दे दिया और उसको बोला कि भाई तुम्हारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर दो. इसका जो कॉस्टिंग है, इट इज 15,000 प्लस GST. This is their implementation cost for one audit program. So this program then you can use for multiple clients. but वो जो first जो checklist है जो है उसका 15,000 है, फिर उसको आप डुप्लीकेट करके मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए यूज कर सकते हो. Additional audit program is 5,000 rupees plus GST, and then per user 3,500 plus GST per year. This program is basically based, made in India or they Ah, are this- US and they have adapted No, made in India. India. This is India. In fact, pricing के लिए मेरा आज ही बात हुआ उससे for the presentation. Because Peer review compliance हो जाएगा. हाँ, इसमें आपका पूरा peer review compliance हो जाएगा. इसमें 100% peer review compliance हो जाएगा. तो आई गेस लिस्टेड एंटिटीज वगैरह बैंक्स वगैरह अगर हम कर रहे हैं तो वी शुड यूज समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है. अगर हमको कुछ इशू अगर हुआ तो वी कैन सी शो देम दैट ओके वी हैव फॉलोड ऑल द प्रोसेसेस. अभी इंटरनेट का कुछ इशू हो रहा है. ये बिग फोर वगैरह यही यूज करती है सर. बिग फोर वाले तो बेसिकली उनके पास खुद के बनाए हुए रहते हैं. वो कई बार तो अकाउंटिंग स्टूडेंट किसको देख रहा हूँ, किसी मैनेजर को हाँ. कोई भूल गया है, वो भी उसमें घुस के देख सकता है, वो सब भी है. वो लोग के खुद के रहते हैं. हैं? वो लोग के तो इनफैक्ट TDS रिटर्न के भी खुद ही सॉफ्टवेयर बनाए हुए रहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न के भी खुद ही बनाए रहते हैं, GST वगैरह सब खुद के ही बनाए हुए रहते हैं इंटरनल. इधर टीम ही रहती है, सॉफ्टवेयर की बड़ी टीम होती है. बट it would be more or less in line with my audit. हाँ. For small CA firms, this is a good one. जैसे जो है सर इंटरप्राइज है, माई ऑडिट की उसी तरह से इंटरप्राइज है, जो हाँ. भी कंपनी है एक, और माई हाँ. ऑडिट उसी तरह से कंपनी है. नहीं, my audit तो काफी छोटी कंपनी है Zoho की कंपैरिजन. हाँ, वो कंपेयर में लेकिन है ही प्राइवेट. हाँ, yes, yes. So any questions? डेटा प्राइवेसी इन सब के अंदर तो इन सब में हर एक का डेटा का they have their data policies and very secured. That is not an issue. In fact, backups etc. is also very secured for all of them.
जब तक आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड शेयर नहीं करते हो कोई डेटा नहीं देख एक्सेस कर पाएगा आपका। फुल It is available on Google में डालेंगे। हाँ मोबाइल में डाल। Do we have any further questions? This software also has how you go about it. Learning or some videos on how to. Yeah, demo. That site must be showing that. Yes, yes. This is how you go about doing it. Like you have for QuickBooks and all, they have a site. जो प्रोजेक्ट्स का होगा डेफिनेटली Okay. मैं ऑडिट वाले तो आपको पूरा इम्प्लीमेंटेशन में ही हेल्प करेंगे। Then will be हाँ personal. एयर टेबल में नहीं होगा। जो प्रोजेक्ट्स का और ये रहेगा आप सर कौन सा यूज कर रहे हैं? चालू यूज कर रहे हैं या आप? मैं एयर टेबल यूज कर रहा हूँ अभी। मैं एयर टेबल यूज कर रहा हूँ कम्प्लीटली। हम लोग एयर टेबल यूज कर रहे हैं ये सर ये वाला। आसान में ये यूज कर। हाँ थोड़ा सा यही है। हाँ। But I think if you use it once, ना 2-3 साल में आपका काम 20% पे आ जाएगा। You need to use now. Yeah. I mean, you can just delegate to somebody where last time ऐसे होता मेरा ऐसे ही कर दो। हाँ बराबर है। तो मतलब टीम के लिए भी ना एक ऑडिट समझा दिया उनको तो उनके लिए भी हो जाता है कि हाँ चलो अभी मेरे को सेट हो जाता है कि भाई ये प्रोसेस फॉलो करना ही है। ओपनिंग बैलेंस देखना ही है। जीएसटी ऐसा देखना ही है। भाई उसमें क्या चेक करना है? हाँ। डॉक्यूमेंट्स 2 साल पहले चेक किए थे वही डॉक्यूमेंट्स नए वाले को भी चेक करना है। Correct. Just go and refer कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। स्टैंडर्ड हो जाता एक्सप्लेन करना है फिर हमने तो आर्टिकल चेंज होते रहता है ना हर उसमें। है। स्टैंडर्ड हो जाता है प्रोसेस। तो आप जिंदगी पे सिखा ही रहे हैं हम लोग सारे। हाँ जो सीख जाते हैं वो बड़ी तुमने जॉब में लिख के बाहर जाते हैं। We are only teachers. नहीं, और जो है ना मतलब अगर आपका नोटेड डाउन नहीं है तो मिस आउट भी हो जाती है चीजें। ये एक बार सिस्टम में सेट हो गया तो यू नो कि भाई ये 1 2 3 4 करना ही है उसको। हम लोग को काफी फायदा हुआ है वो जो सर बोल रहा है ना वो पर्सपेक्टिव से। तो जैसे पहले इतना डिसिप्लिन नहीं था लेकिन अभी आपने देखा रहेगा वो लड़के ने वो इंटर्न ही है वो 30 रुपए का डिफरेंस डाला हुआ है। उसको पता है भाई वो 26 ईयर्स करना है पैसा टू पैसा मैच तो डाल दिया है उसने कि भाई 30 रुपीज डिफरेंस है। दैट इज देयर ऑन रिकॉर्ड। उसका भी पॉइंट बढ़ रहा है ना कि हाँ उसका निकाला है उसने। उसका निकाल ऐसे फॉलो किया उसने प्रोसेस। काफी बार क्या होता है कि हम लोग अगर हम ये सिस्टम नहीं रखते तो हम लोग उन पे रिलाई करते हैं कि भाई रिको हो रहा है बोलेगा हाँ तो अभी यू नो हाँ कंसिडर करके अपने को एक्सेप्ट करना पड़ता है। नहीं जस्टिफाई होता है। हाँ ये मैं जूम का मीटिंग बंद कर दूं एंड